into an artificial administrative structure, and whereas the restoration of Sindh in 1970 stands as enduring testimony to the unwavering resolve of its people to safeguard the province. And whereas the framers of the 1973 Constitution of the Islamic Republic of Pakistan reaffirmed the federal structure of the country and explicitly provided under Article 239 that no alteration of provincial boundary shall take place without the consent of more than 2/3 members of the concerned provincial assembly. And whereas Sindh entered the federation as a historic and distinct unit and was the first province to pass the resolution in favor of Pakistan, reflecting its long-standing commitment to federalism, democracy, and national unity. And whereas the sons and daughters of Sindh, from Karachi to KT Bandar, from Kashmir to Karunjhar, have collectively contributed to building Karachi into the economic engine of Pakistan, symbolizing unity in diversity rather than division. And whereas any attempt to divide Sindh, fragment its territory, or detach Karachi from Sindh is contrary to history, constitutional spirit, democratic norms, and deeply held sentiments of the people of Sindh, and would undermine national cohesion and federal compact. Now, therefore, this House unequivocally condemns and rejects any conspiracy aimed at division of Sindh or creation of separate province comprising Karachi, declares that Karachi is and shall forever remain an integral and inseparable part of Sindh. Reaffirms that the unity, territorial integrity, and history of Sindh are sacred trusts inherited from our forefathers and shall be defended through constitutional, democratic, and political means. Calls upon political stakeholders to refrain from divisive rhetoric or actions that threaten provincial harmony and national cohesion. Resolves that this Assembly stands united beyond party lines in defense of Sindh's integrity, dignity, and unbroken legacy. Directs the government to approach the federal government with a request to transmit a copy of this resolution to the President of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan, Chairman, Senate of Pakistan, and the Speaker of National Assembly of Pakistan for record. सरदार शाह साहब, पहली स्पीच आप करेंगे इस पे? जी सर कर लेता हूं पहले, and then the others, whoever wants to speak, because this is quite a important topic. सर, ये बात कुछ दिनों से मीडिया में और कुछ जगहों पे कोई मीटिंग्स हुई, उसमें कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। सबसे पहले तो मैं इन सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और मुझे पता है कि मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध था, सूबा सिंध की असेंबली थी, यही लिमिट्स थी सूबा सिंध की जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। तो हम, मेरे साथ पाकिस्तान से प्यार करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स इस रेजोल्यूशन की तायीद करेगा। और जो ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है कि किसी तरीके से कि पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाएं और लोगों को डिवाइड करें, उससे इनहराफ करेंगे और इस रेजोल्यूशन की तायीद करेंगे। तो ये पहला मौका नहीं है, पहले भी कई बार, और इस असेंबली ने 2014 में एक रेजोल्यूशन पास की थी इसी लाइंस पे, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड नहीं थी। वो रेजोल्यूशन थी कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो अभी भी हैं, तालके हैं, तहसीलें हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कोई और सिंध की तोड़ फोड़ का जो सोच रहे हैं वो गलत बयानी है और ना सोचे। और सबसे बढ़कर जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि
1948 में जब कराची को कैपिटल बनाया गया था, उस वक्त 1973 का आईन नहीं था। पाकिस्तान के अंदर कोई आईन नहीं था। अगर पाकिस्तान के अंदर 1973 का आईन होता तो वो फैसला भी ना होता, और उस फैसले के खिलाफ भी इसी असेंबली ने उस फैसले से पहले करारदाद पास की थी, और वो करारदाद काफी थी। अगर 1973 के आईन जिस पे हर एक यकीन करता है, किसी ने या तो कह दें कि जी 73 के आईन को नहीं मानते, अगर 1973 का आईन होता तो 1948 में वो चीज नहीं होती जो हुई थी। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो इस असेंबली की 2/3 अक्सरियत ने ये फैसला करना है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात होती है। और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूं कि अगर ये असेंबली आज फैसला कर ले, तो मैं तो यही चाहूंगा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस हर एक, इसलिए कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूं। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये अलग मतलब कोई ले लेंगे इसको कि मैं कराची को कोई कह रहा हूं कि जी तवज्जो नहीं दिया कि कराची के ऊपर वो अलग से बात कर सकते हैं कि जी क्या होना चाहिए कराची के अंदर और मजीद सहूलियात देनी चाहिए, उसमें बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बात सिर्फ यही कर रहा हूं कि अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। इस करारदाद में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, किसी पार्टी के ऊपर कोई अटैक नहीं है, किसी शख्स के ऊपर कोई अटैक नहीं है। तो मैं सारे असेंबली मेंबरान से ही दरखास्त करूंगा कि इस करारदाद को पढ़ें, अगर इसके किसी नुक्ते पे कोई एतराज है तो वो बता दें, और अगर एतराज नहीं है तो इस करारदाद को पास करें। मैं डिटेल सारी बता चुका हूं कि सूबा सिंध का किरदार क्या रहा है, सूबा सिंध की आइडेंटिटी क्या रही है। अंग्रेजों ने जब इस इलाके पे कब्जा किया था तब भी सिंध काफी अरसे तक इंडिपेंडेंट था, फिर इसको बॉम्बे के साथ कर दिया गया। उस वक्त भी सिंध के लोगों ने तहरीकें चलाई और 1936 में कामयाब हुए सिंध को वापस से एक इंटीग्रल पार्ट बनाने में। पाकिस्तान की करारदाद इस सूबा सिंध की असेंबली ने पाकिस्तान के बनने से पहले पास की, और जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद भी सबसे पहले करारदाद इसी असेंबली ने मंजूर की थी पाकिस्तान के लिए। तो मैं उसके बाद जो सिंध का किरदार रहा है पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में, ये सबके सामने सदर आसिफ अली जरदारी जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। और हम कभी भी सिंध के लोग पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आप सिंध को तोड़ फोड़ की बात करेंगे तो आप हैं जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ जा रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है तो मैं यही सबसे दरख्वास्त करूंगा। और जैसे मैंने कहा कि इस करारदाद की इस वक्त ज़रूरत इसलिए महसूस की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और बीइंग द लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे ये कहा है कि करारदाद पेश की जाए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। इसलिए कि यह असेंबली, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों साइड पे जो लोग बैठे हैं इस करारदाद की हिमायत करके और इस करारदाद को पास करेंगे। मैं और ज़्यादा बड़ी तकलीफ नहीं करना चाह रहा, इसलिए काफ़ी लोग इस पर बात करना चाहेंगे और मैं सबको मौका देना चाहता हूँ कि वो इस करारदाद पे बात भी करें और इसकी हिमायत करें। बहुत शुक्रिया जी। सेक्रेटरी साहब कॉपी दे दें लीडर अपोजिशन को, और शायद मांग रहे हैं अपोजिशन बेंचेस से।